انا للہ و انا الیہ راجعون انا للہ و انا الیہ راجعون انا للہ و انا الیہ راجعون السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسين وعلى أبو الفضل العباس أخ الحسين وعلى سكينة بنت الحسين وعلى زوار قبر الحسين وعلى الباقين في المجالس الحسين عزاداران مظلوم کربلا، خدا آپ کو کسی غم میں مبتلا نہ کرے۔ عزادارو، آج عاشور کا دن ہے، عصر کا وقت آ گیا ہے، یہ وہ وقت ہے جس میں میرے اور آپ کے آقا کی شہادت ہے۔ عزادارو، میری جانیں قربان ہو جائیں، خدا آپ کو کسی غم میں مبتلا نہ کرے۔ عزادارو، گوپال پور میں مجلس ہو رہی تھی، مجلس میں ایک بزرگ شخص موجود تھے۔ عزادارو، بے انتہا رو رہے ہیں، کبھی ہائے علی اکبر کہہ کے، کبھی ہائے علی اصغر کہہ کے۔ عزادارو، مجلس ختم ہوئی، کافی دیر مجلس کے بعد روتے رہے، جلوس نکل گیا، روتے رہے۔ عزادارو، جلوس کے بعد فاقہ شکنی ہو گئی، روتے رہے، لوگ واپس آ گئے، روتے رہے۔ سب نے کہا بھئی ان بزرگ سے پوچھے یہ اتنا کیوں رو رہے ہیں، کون سی مصیبت پہ ان کو زیادہ غم ہے۔ عزادارو، جو خطیب تھے وہ آگے کہتے ہیں یہ بتائیں آپ اتنا کیوں روتے ہیں، کیا وجہ ہے، آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں آپ کو کیا علی اکبر علیہ السلام کے مصائب میں نے پڑھے، خطیب نے کہا، عالم نے کہا، وہ رلا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، خاموش، کچھ جواب نہیں دیا۔ کیا آپ کو قاسم کے مصائب رلا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا انہوں محمد کے مصائب رلا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا عباس علمدار کے مصائب رلا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں دیا۔ عزادارو، جب یہ بات زیادہ آگے بڑھی، پوچھتے ہیں کیا مولا حسین کی میں نے جو شہادت پڑھی وہ آپ کو رلا رہی ہے؟ تو وہ بزرگ جن کی بہویں لٹکی ہوئی تھی فوراً دیکھ کے کہتے ہیں میں سن کے نہیں رو رہا، میں دیکھ کے رو رہا ہوں۔ کیا میں سن کے نہیں، میں دیکھ کے رو رہا ہوں۔ کہا آپ کا نام کیا ہے؟ عزادارو، جب یہ پوچھا نا آپ کا نام کیا ہے، کہتے ہیں مجھے جعفر جن کہتے ہیں۔ عزادارو، آغا مہدی لکھنوی نے بھی اس واقعے کو مکمل بیان کیا ہے۔ عزادارو کہتے ہیں مجھے جعفر جن کہتے ہیں، بھئی یہ جملہ کہنا تھا۔ عزادارو بتائیں کیا بات ہوئی، کیسے؟ کہا کہ میرے بیٹے کی شادی تھی، میرے بیٹے کی شادی کا وقت اسرار الشہادہ میں بھی جعفر کے آنے کا لکھا ہوا ہے، تمام کتابوں میں موجود ہے، اور اس کے علاوہ مرقات علی خان میں اور مضامیر الاولیاء میں لکھا ہے کہ جعفر کیسے کربلا میں پہنچے۔ عزادارو، جعفر کہتے ہیں کہ میری شادی تھی، میرے بیٹے کی شادی تھی، شادی کا دن عاشور کا دن تھا۔ کہا کہ میرا چچا زاد بھائی ابھی نہیں پہنچا تھا، کہتے میرے چچا زاد بھائی کو آنے میں دیر ہو گئی، سب نے کہا کہ سیرے باندھ دے۔ کہتے کہ میں سوچ رہا
रहा था सेरे बांधूं, कहते अभी मैंने सेरे बांधने का इरादा किया, कहते इतने में मैंने क्या देखा, सामने से कोई आ रहा है और एक आवाज आती है, हटो बचो रास्ता दो। मैंने कहा क्या बात है, ये कौन है? कहते जब मैंने करीब देखा तो देखा मेरा चचाजाद भाई आ रहा है और मुझे देख के कहता जाफर अपने बेटे के सेरे ना बांध। मैंने कहा क्यों सेरे ना बांधू, तू भी तो इसका कुछ लगता है। कहा नहीं जाफर, मैंने जो मंजर देखा है ना, अगर तू देख लेता तू ये ना कहता क्या मंजर देखा है। कब मैं परवाज करता हुआ करबला के ऊपर से गुजर रहा था और हर तरफ से आवाज आ रही थी, मारो इस बागी को, मारो इस बागी को, मारो इस खारिजी को, नाउज़ बिल्लाह। कहते मैंने कहा देखूं ये कौन है? कहा मैंने देखा एक शख्सियत दरमियान में मौजूद है। कहते मैं दरमियान में एक शख्सियत को देखा जिनके चेहरे से नूर साथे था जो आसमान की तरफ जा रहा था। कहते मैंने कहा यार ये कोई बागी नहीं लगता, ये तो नमाजी लगता है। कहते अभी मैं ये देख ही रहा था, मैंने क्या देखा, एक 3 मुंह वाला तीर मेरे पास से गुजरा और गुजर के उसके पहलू में जाके नस्ब हो गया। इसने तीर को निकाला, खून का फव्वारा जारी हुआ, तीर हाथ में लेके आसमान की तरफ उछाल, मेरी जाने कुर्बान हो जाए। तो इसने एक फिक्रा का, अम्मा जहरा, अम्मा आपका भी पहलू जख्मी था, मेरा भी पहलू जख्मी है, लेकिन अम्मा आपको बेटियां संभालने वाली मौजूद थी। मौला मेरी है, बीबी है, मेरी माँ सैयदा, आपके जराने मेरी बहनें मौजूद थी, लेकिन अम्मा इस वक्त मेरे पास कोई नहीं है। कहते मैंने फौरन नीचे उतरा, मैंने कहा आपने किस सैयदा को बुलाया है? कहा जाफर मेरा नाम लेके मुझे जवाब सलाम किया और एक जुमला कहा कि जाफर की बेटे की शादी का खत मुझे मिल गया था, लेकिन मैं क्या करता, मेरा अकबर मारा गया था, मैं क्या करता, मेरा कासिम मारा गया, मेरा अब्बास मारा गया। अज़ादारो ये सुनना था। जाफर ने सारी चादरें उतार के जमीन पे रखी और कहा कि मैं तुम सबको रुखसत करता हूँ, अब मैं अपने बच्चे के सेरे करबला में बांधूंगा। जाफर कहता है सबको रुखसत किया तो सब कहते हैं जाफर जब तक अपनी बात थी हमें साथ रखा और जब हमारे मौला की बात आई तो कह रहे चले जाओ। अज़ादारो जाफर ये पूरा लश्कर और जाफर की माँ ये सब रवाना हुए करबला में। जाफर कहते हैं 18,000 आलम की मखलूक करबला में जमा थी। कहते हैं इतना मजमा था कि कहते काफी दूर से कोई हर मखलूकात वहां पे इंतजार में खड़ी थी कि सैयदा का चांद हमें इज़्न दे। अज़ादारो जाफर कहते हैं मुझे मौला नजर नहीं आ रहे थे, मैंने कहा मैं सलाम करता हूँ, जहाँ पे होंगे जवाब सलाम आएगा। जाफर कहते हैं मैंने सलाम किया, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन। अज़ादारो कहते तीरों से जवाब आया। एक शख्सियत को देखा जिनके पूरे बदन पे तीर लगे हुए थे, आवाज आई वालेकुम या जाफर। अज़ादारो चले हम भी मौला को सलाम करते हैं, मौला हमारे जवाब सलाम हमें करबला बुला के देंगे। अस्सलाम अल हुसैन वाला अली इब्न हुसैन वाला औलाद हुसैन वाला अस्हाबिल हुसैन वाला अबुल फज़ल अल अब्बास अबुल हुसैन। अज़ादारान मज़लूम करबला इस वक्त करबला से भी हमारी आवाज पहुंच रही है। शोज़ब इस वक्त करबला में मौजूद है, मौला के हरम में हमारी लाइव वहां भी सुनी जा रही है, पाकिस्तान में भी मौजूद है। अज़ादारों मेरी जाने कुर्बान हो जाए जब ये मंजर देखा है ना। अज़ादारों जाफर कहते मैंने मौला को सलाम किया, कहते तीरों से जवाब आया वालेकुम सलाम या जाफर। अज़ादारों मौला ने कहा जाफर इनको सबको वापस भेज दे यहाँ से। जाफर तू रुक जा, तेरी माँ रुक जाए। जाफर कहते मैंने सब रोते हुए जिन वापस चले गए।
अज़ादारो जाफर कहता मैं रुका, मौला ने कहा जाफर आ मैं तुझे अपना उजड़ा हुआ बाग दिखाऊं। अज़ादारो मौला एक जगह लेके गए, गठरी रखी हुई थी। मौला ने कहा जाफर पहचान मेरा कासिम है। आगे गए, एक जवान लेटा हुआ था, अज़ादारो सीने में पल था। मौला ने कहा सीना जख्मी था। मौला ने कहा जाफर मेरा बेटा अली अकबर है, जाफर मेरा शबी रसूल अली अकबर है। अज़ादारो मौला ने कहा जाफर आगे चले। कहते दरिया के किनारे लेके आए। जाफर कहते दरिया के किनारे लाने के बाद मौला ने कहा अब्बास भाई आंखें खोलो, जाफर मिलने आया है। अज़ादारो जाफर कहते हैं कि अब्बास इलमदार ने आंखें खोल के मुझे इशारा किया झुकने का। कहते मैं झुका तो अब्बास ने कोई फिक्रा मेरे कान में कहा, मैंने परवाज की जमीन पे गिरा। मौला हुसैन कहते हैं जाफर तुझे अब्बास ने क्या कहा? मौला अब्बास ने मुझे कहा है कि जाफर हुसैन अकेला नहीं, ज़ैनब साथ आई है। अज़ादारो जाफर कहते हैं दोबारा फिर अब्बास ने इशारा किया। कहते मैं झुका तो एक जुमला का जाफर 3 मरतबा परवाज की जमीन पे गिरा। और पूछा कि कब क्या कहा कि अब अब्बास ने ये फिक्रा कहा था जाफर बीबी की चादर न छिने। अब जाफर मैं तो चला गया लेकिन बीबी की चादर न छिने। अज़ादारो मेरी जाने कुर्बान, हम सब की जाने कुर्बान। अज़ादारो मेरी जाने कुर्बान हो जाए, खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए। उसके बाद मौला ने कहा जाफर अब चला जा, जाफर चला जा यहाँ से। का मौला किस लिए मुझे यहाँ पे रहने दे, मैंने इनको दुश्मनों से जंग करनी है। का जाफर चला जा, जाफर चला जा। का मौला मुझे इजाजत दे दे। का जाफर चला जा इसलिए कि मेरी माँ सैयदा कत्लगाह के करीब पहुंच गई है। अज़ादारो मेरी जाने कुर्बान। जाफर कहता मैं बेहोश हो गया, जब आँख खुली तो आवाज बुलंदी। अज़ादारो खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए, खुदा आपको आबाद और शाद रखे। जहाँ कहीं आप मौजूद है खुदा आपको रोने और रुलाने वालों में शुमार करे। अज़ादारो मेरा मौला खेमे में आया, अल्लाह में मजलिस पढ़ रहे थे तो एक कनीज आगे कहती है इस मजलिस में हुसैन की माँ सैयदा मौजूद है। और बीबी फरमाती है, और बीबी ये कह रही है मजलिसी से को मेरे हुसैन की रुखसत का हाल बयान करे। अज़ादारो अल्लाह में मजलिस में रुखसत का हाल जनाबे सैयद खुदा जानता है कि सारी मुसीबतें एक तरफ, रुखसत हाल एक तरफ। अज़ादारो मौला खेमे में आए, एक एक बीबी से रुखसत हुए। क्या जुमला फरमाया, या ज़ैनबो या उम्म कुलसूम या रुक़ैया या सुकैना अलैकुन्ना मिन्निज़्ज़ला। मुझे हुसैन का आखिरी सलाम कबूल हो। अज़ादारो मेरी जाने कुर्बानी, इस आवाज का बुलंद होना था। अज़ादारो मौला खेमे में दाखिल हुए, बीबियों से खुदा हाफ़िज़ी किया। अज़ादारो कोई बीबी कहती है हमें किसके सहारे छोड़ के जा रहे हैं, कोई बीबी कहती है मौला हमें मदीने वापस पहुंचा दे, कोई बीबी कहती है आपके बाद हम जिंदा रह के क्या करेंगे। अज़ादारो एक एक बीबी को मौला ने तसल्ली दी, लेकिन जिसको तसल्ली नहीं मिलती उसका नाम बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा है। का हुसैन भैया मैं कैसे इजाजत दूं अपने भाई को, हुसैन मैं कैसे इजाजत दूं तेरा सर कट जाए, हुसैन मैं कैसे इजाजत दूं तेरी लाश पे घोड़े दौड़ा दिए जाए, हुसैन मैं कैसे इजाजत दूं। अज़ादारो मौला बड़ी मुश्किल से खेमे से बाहर निकले, बीबी साथ मौजूद है। अज़ादारो कैसे बरामद हुए मौला हुसैन, किस तरीके से बाहर आए। मीर अनीस फरमाते हैं शब्बीर बरामद हुए यूं खैमा के दर से, अरे जिस तरह निकलता है जनाजा किसी घर से। अज़ादारो मौला खैमे से निकले, अज़ादारो मौला खैमे से बाहर आए। अज़ादारो बीबी को करार नहीं आ रहा। अज़ादारो उलमाए मकातिल बयान करते हैं अशारा बेयदही अलैहिस्सलाम इला सदर उख्ते, मौला ने अपनी उंगली से
बीबी के दिल की तरफ इशारा किया। अल्लाह ये वो मौका था अज़ादारों, मैंने जो पढ़ा है, बीबी ने हाथों में हाथ रखे हुए हैं, हुसैन मैंने नहीं जाने देना, भैया हुसैन बहन तुम्हें नहीं जाने देगी, हुसैन मैं एक लम्हा तुझे न देखूं मुझे करार नहीं आता, हुसैन मैंने आपको नहीं जाने देना। अज़ादारों ये वो मौका था। उलमा बयान करते हैं कि मौला हुसैन ने अपनी इमामत का सहारा लिया, साहिब ज़मा, मौला ने अपनी इमामत का सहारा लिया। मौला ने अपनी उंगली से बीबी के दिल की तरफ इशारा किया। अल्लाह जाने इस इशारे ने क्या काम किया, बीबी ने हाथों को छोड़ दिया। जा हुसैन अल्लाह के हवाले, जा हुसैन अल्लाह के हवाले। लेकिन हुसैन मुझे पीछे मुड़ मुड़ के देखते रहना। अज़ादारों मौला को जुलजना पे सवार कराया, सैयदा का लाल मैदान सैयदा का लाल मैदान की तरफ रवाना हुआ। अज़ादारों अभी मौला चंद कदम चले थे, पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज आई। अज़ादारों मौला ने जब मुड़ के देखा तो क्या मंजर देखा, अरे चाहने वाली बहन आ रही है। अरे कभी गिरती, कभी खड़ी हो जाती है, कभी गिरती है, कभी खड़ी हो जाती है। और एक फिक्रा है, क्या फिक्रा सुन सकेंगे? अगर बर्दाश्त न कर सको मुझे माफ कर देना। अज़ादारों क्या फिक्रा है? महलन महला यबन ज़हरा, महलन महला यबन ज़हरा, महलन महला यबन ज़हरा। ऐ सैयदा के चांद जरा आहिस्ता चल, ऐ सैयदा के चांद जरा आहिस्ता चल। अज़ादारों मौला उतरे, पूछा बहन क्या बात है, आपने मुझे रुखसत कर दिया था, ये मेरे पीछे क्यों आ रही हो? कहा हुसैन भैया एक दुआ कराने आई हूँ। हुसैन तू इमाम है, तेरी दुआ रद्द नहीं होती, मेरी एक दुआ कर दे। अज़ादारों मेरी जाने कुर्बा। अज़ादारों मज़ामीर लौलिया वाले लिखते हैं, कहा हुसैन एक दुआ कर दे, बिरादर दुआ करके ज़ैनब में भी रहे। ऐ हुसैन दुआ कर ज़ैनब मर जाए। अरे तेरा नेज़े की नोक में सर, तेरा कटता हुआ सर भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मौला आपको किसी गम में ना रुलाए, मौला आपको किसी गम में। ऐलान होता है ना और मस्जिद से, ए लोगों फुला का इंतकाल हो गया, नमाज जनाजा इतने बजे है। नासिर अब्बास शहीद कहा करते थे, खुदा रहमत नादिल करेगा। लोगों एक मजलूम का जनाजा पड़ा है, मैं भी एक जुमला कहूंगा। लोगों रसूल का नवासा करबला की गरम रेत पे पड़ा है, असर आशूर है, कोई जनाजा दफन करने वाला नहीं। आए बच्चों को दिवा कर दिया, जवानों को मार दिया, बीबियों को कैद करके लेके जा रहे हैं। अज़ादारों 3 दिन तक लाशा पड़ा रहा। अज़ादारों मेरी जाने कुर्बान। मौला मैदान में आए, बीबी ने एक फिक्र का, हुसैन मुझे मुड़ मुड़ के देखते रहना। अज़ादारों मेरी जाने कुर्बान, हम सब की जाने कुर्बान हो जाए। अज़ादारों, अज़ादारों मैंने पूरे मसाइब लिबास अतीक के नहीं पढ़े, इमाम सज्जाद से रुखसत के नहीं पढ़े, 5 मरतबा मौला बेहोश हो के गिरे, मैंने नहीं पढ़ा, सब छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। अज़ादारों आप भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी सैयद हूँ। अज़ादारों मिलता है कि सैयद के लिए अपने घर का दर्द बयान करना बड़ा सख्त है। अज़ादारों मौला मैदान में आए। अज़ादारों मेरी जाने कुर्बान, मेरा मौला ने पहला हमला किया, दूसरा हमला किया, तीसरा हमला किया। लश्कर यजीद की फौजें कूफे की दीवार से जाके टकराई। अज़ादारों एक मंजर था, हर तरफ से अल अमान की आवाज बुलंद हो रही थी। हुसैन बेबस मजलूम का नाम नहीं है, हुसैन कुदरतमंद मजलूम का नाम है, हुसैन बाइख्तियार मजलूम का नाम है। अज़ादारों जब वो मौका आया, मेरी जाने कुर्बान हो जाए, अब लश्कर बिखरता जा रहा है, अज़ादारों बिखरता जा रहा है। अज़ादारों मेरी जाने कुर्बान, अब क्या सूरत हाल है। अब मैं माजरत चाहता हूँ, आप
आपसे नहीं, इमाम ज़माना से, इमाम रज़ा से माज़रत के साथ ये 2 जुमले अर्ज कर रहा हूँ। मैंने आज तक ना अली अकबर अलैहिस्सलाम की पूरी शहादत पढ़ी है, ना अब्बास अलमदार की पूरी शहादत पढ़ी है, ना मौला हुसैन की शहादत और ज़रबे मैंने कभी नहीं पढ़ी। अज़ादारों 2 जुमले सुन लो, अगर बर्दाश्त न कर सको तो मुझे माफ कर देना। अज़ादारों सैयदा का लाल दुलजना पे मौजूद है। इतने में हरमला मलऊन ने 3 मुंह वाला तीर चलाया, मौला के दिल का निशाना लेकर। अज़ादारों तीर दिल पे लगा, तीर आगे से ना निकला, मौला ने कब्र से तीर को निकाला। अभी सैयदा का लाल तीर निकालने में मसरूफ था। अज़ादारों दाएं तरफ से खोली ने नेजा मारा, अज़ादारों नेजा पसलियों में फंस गया। बाएं तरफ से सनान ने नेजा मारा, अज़ादारों दोनों तरफ से नेज़े। वो मलून इस तरफ खींचता है, ये मलून इस तरफ खींचता है। मीर अनीस फरमाते हैं, चलते थे 4 समत से बाले हुसैन पर, टूटे हुए थे बर्छियों वाले हुसैन पर, कातिल थे खंजरों को निकाले हुसैन पर, ये दुख नबी की गोद के पाले हुसैन पर। तीरे सितम निकालने वाला कोई नहीं, गिरते थे और संभालने वाला कोई नहीं, जख्मों से चूर चूर हुआ फातिमा का। जख्मों से चूर चूर हुआ फातिमा का लाल, सरवर रियाज अहमद व हैदर हुआ निडाल, चेहरे पे खून मल के बदल हजरत मलाल की अर्ज शैल शुक्र है रब्बे जुल जलाल। बचपन से रोज और शब्दी यही आरज़ू मुझे, या रब तेरे करम ने किया सुरखरू मुझे। अज़ादारों मौला ज़ीन से जमीन पे तशरीफ लाए, अज़ादारों मेरे मौला का गिरना था, इतने में एक मलून ने सर पे नेज़े, सर पे तलवार का वार किया। अज़ादारों सर पे तलवार लगी, खून का फव्वारा जारी हुआ, अम्मामा कटा। अज़ादारों मौला ने अबा के दावर को दोबारा बेजारी में बांधा। अज़ादारों बांधने के बाद कितनी देर तक सैयदा का चांद बेहोश होकर करबला की जमीन पे पड़ा रहा। अज़ादारों गिरा रहा, कोई उठाने वाला नहीं। इतना खौफ बैठ चुका था लश्कर यजीद में कि कोई आगे नहीं होता था। उमर साद ने कहा मैं देखता हूँ कि हुसैन जिंदा है या नहीं, हमने खैमे पे हमला करना है। कहा ऐसा करो नेज़े बरदार लेके चलो जो हुसैन के पास से गुजरे और सिर्फ ये जुमला कहे कि आओ चलो खैमों पे हमला करें, आओ बीबियों की चादरें छीने। अज़ादारों जब ये गुजरे हैं पास से तो एक मर्तबा सैयदा का चाल अज़ादारों बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ, बैठा और बैठ के कहता है खैमे न जाओ, उमर साथ में अभी जिंदा हूँ। अज़ादारों मौला आपको सलामत रखे। बस मजलिस तमाम हो गई। एक रिवायत और आपकी ज़हमत तमाम। अज़ादारों मसाइब पूरा दिन पड़े जाए, इमाम हुसैन के खत्म नहीं होते। मौला कितनी मर्तबा खैमे गए, खैमे से फिर वापस आए। अज़ादारों मेरी जाने कुर्बान, खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए। अज़ादारों वो मौका आया, अज़ादारों बहन को अपना भाई नजर नहीं आया। अज़ादारों बीबी खैमे से निकली, अज़ादारों टिल्ले ज़ैनबिया पे पहुंची। ऐ जमीन बुलंद हो, मुझे हुसैन नजर नहीं आ रहा। हुसैन कह रहे जमीन नीची हो, मुझे मेरी बहन न देखे। अज़ादारों उधर नशेब है, उधर फराज है। अज़ादारों वो मौका आया। अज़ादारों बीबी ने एक जुमला, अरबों में एक दस्तूर है, जब किसी पे मुसीबत की इंतहा हो जाए तो अपने सर पे हाथ मारता है। अज़ादारों बीबी ने अपने सर पे हाथ मार के कहा यब्न साद, ए उपिसरे साद, तुझे शर्म नहीं आती सैयदा का लाल? अरे तू सहाबी रसूल का बेटा है, तूने तो हुसैन को नाना के पास देखा था। ए पिसरे साद, तुझे शर्म नहीं आती? सैयदा का लाल ज़िबा हो रहा है और तू खड़ा देख रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? अज़ादारों बीबी कितनी मर्तबा जमीन में बैठी फिर खड़ी होती है, हाय मेरा हुसैन, हाय मेरा हुसैन। यहाँ पे रुक जाए, एक जुमला और मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पे रुक जाए। अज़ादारों नाफे कहता है
एक लश्कर उमर साथ में था, कहते मैंने एक आवाज सुनी, अबशिर अय्युल अमीर, ऐ अमीर खुश। अनवर शहादा वाले लिखते हैं, मुअय्यजुल आज़ान वाले लिखते हैं, मिरकातुल इकान में, मसाइबुल मासूमीन में, जमरतुल फुआद में, हुज़्नुल मोमिनीन में, और कितनी मक्तल की किताबों में लिखा है कि नाफे कहता मैं लश्कर उमर साथ में था, मैंने आवाज सुनी, अबशिर अय्युल अमीर, ऐ अमीर खुश हो जा, सैयदा का लाल ज़िबा हो गया, हुसैन कत्ल कर दिए गए, हुसैन ज़िबा कर दिए गए। नाफे कहता है मैं लागे कत्लगाह की तरफ गया, अल्लाह अकबर, कहते मैं कत्लगाह की तरफ गया, मैंने क्या मंजर देखा, वह शिमरो जालिसुन अला सदरही, बोसा गाहे रिसालत से शिमर बेअदबी कर रहा है, मैं तर्जुमा नहीं कर सकता इसका, मक्तल में जाके देख लेना। कहते मैंने देखा शिमर बेअदबी कर रहा है और हुसैन के लब खुश्क है। कहते मैं फौरन उमर साद के पास आया, ऐ उमर साद तूने तो ज़िबा कर ही देना है सैयदा के लाल को, चल 2 घूंट पानी के पिला दे, अरे वो बहुत प्यासा है। कहते उसने कोई जवाब न दिया। नाफे कहता मैं एक सूखी मचक उठा के चला, फुरात के पानी से मैंने भरा। कहता अभी चंद कदम चला था, फदाए बसीत में जलजले आने शुरू हो गए, फुरात का पानी नेजो बुलंद होना शुरू हो गया। अजादारों कहते आसमान से खून की बारिश होने लगी, सियाह आंधियां चलने लगी, गर्दो गुबार इतना ज्यादा था कुछ नजर नहीं आ रहा था, और एक आवाज बुलंद हुई, अला कुतिल हुसैन बे करबला, अला जुबिल हुसैन बे करबला, लोगों हुसैन कत्ल कर दिए गए, लोगों हुसैन ज़िबा कर दिए गए। कहते कुछ नजर नहीं आ रहा था, थोड़ी देर के बाद मैंने देखा सामने से शिमर आ रहा है और उसकी झोली में कोई चीज है और वो पूरी तरह से कांप रहा है, लरज रहा है। मैंने कहा शिमर तेरी झोली में क्या है? उसने मौला हुसैन का कटा हुआ सर दिखाया। मैंने कहा शिमर तू अपने मकसद में कामयाब हो गया, तूने सैयदा का बड़ा दिल दुखाया, तूने अली मुर्तदा का बड़ा दिल दुखाया। मुझे ये बता इतनी बुरी तरह लरज क्यों रहा है, इतनी बुरी तरह से कांप क्यों रहा है? तो शिमर की आवाज आई, नाफे मुझसे ना पूछ। कहा नहीं मुझे पता कांपता क्यों है, लरजता क्यों है। कहा नाफे जब मैंने इस सर को बदन से जुदा किया, मैंने कत्लगाह में काले बुरके में मलबूस एक बीबी को देखा, अरे जो कभी जमीन पे बैठती है कभी खड़ी हो जाती है, और एक फिक्रा है वलदी हुसैन, ए मेरा बेटे हुसैन, क्या मैंने तुझे इस दिन के लिए चकिया पीस के पाला था कि सैयदा देखती रहे और तेरा सर जुदा कर दिया जाए। आखिरी जुमला, आपकी ज़हमत है तमाम, खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए, सवाए गम अहले बैत के अगले साल से पहले करबला की जियारत नसीब हो। इस वक्त करबला से भी लाइव देख रहे हैं शोज़ब भाई, आप जहाँ कहीं बैठे अज़ादारी कर रहे हैं, मौला का जिक्र सुन रहे, सैयदा के इमाम सज्जाद फरमाते हैं जहाँ एक पढ़ने वाला हो एक सुनने वाला हो, हमारी दादी जरूर आ जाती है। हर एक के पास इस वक्त सैयदा बैठी है। अज़ादारों मेरी जाने कुर्बान आखिरी फिक्रा है। अज़ादारों सैयदा बीबी शरीकतुल हुसैन टिल्ला ज़ैनबिया पे मौजूद है, अपना भाई नजर नहीं आता। अज़ादारों एक मर्तबा शिमर से मुखातिब होके कहती है, शिमर मुझे हुसैन नजर नहीं आ रहा, शिमर मेरे हुसैन पे क्या जुल्म किया तूने, अज़ा उमर साथ मेरा हुसैन कहाँ है? अज़ादारों मुझे माफ कर देना। अज़ादारों मक्तल में लिखा है कि शिमर ने बालों से पकड़ के मौला का सर उठा के दिखाया, ऐ बहन तेरा भाई ये है, तेरा हुसैन ये मेरे हाथों में। अल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन फसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौला आप सबके पुरसे को कबूल फरमाए, जनाब सैयदा आप सबकी अज़ादारी को कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह रात को शाम गरीबा की मजलिस में इंशाअल्लाह मौला की बारगाह में पुरसा पेश करेंगे।
اللہم اجل ولیک الفرج، خدا ہمارے آقا کے ظہور پہ تاجیل فرماتا کہ ان قاتلوں سے بدلہ لے، ان ظالموں سے انتقام لے، اللہم اجل ولیک الفرج والعافیت والناس وجعلنا من خیر اوانہ وانصارہ والمستشہدین بین یدی یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الرجا، اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین برحمتک یا ارحم الراحمین۔